So in the previous session we have discussed about working of your diesel electric power plant. Now in this session we will discuss about what exactly you are going to use in the diesel electric power plant. So basically in the diesel electric power plant we are going to use the engine, diesel engine. Okay, so there are different types of engines, two-stroke engines and four-stroke engine, as well as CI engine and SI engine. So what is meant by that we are going to discuss in this session. Okay, so this is one type of CI engine and second type is your SI engine. CI engine stand for your compression ignition engine and SI engine stand for your spark ignition engine. Similarly, again the engines are categorized into two parts based on the working strokes. Okay, how many strokes are going to be completed in one revolution. So if there are basically four strokes, one is intake, second is compression, third is combustion, and fourth one is exhaust. So this is first. Intake means what? In the first operation, it is going to take fuel as well as air inside the cylinder. Okay, so in intake we are going to allow the fuel as well as air go inside the cylinder, so that is called as the ignition. Second is compression. In the compression state we are going to compress that air fuel mixture. Third one is the combustion, in which the spark plug or because of the compression, that is going to be flame is going to be generated or fire is going to be ignite over there, so that is the combustion. Okay, and the last one is exhaust. So when the your air fuel mixture will get burned, so it's going to be expanded, the volume is going to be increases. So basically what happened, if you are going to use diesel or if you are going to use petrol, so they are liquid in nature. Okay, so that is liquid in nature. So when it is going to be burned, at that time what happens, that is going to be converted into the gas and it require more volume. The volume required, it should be more. So what happens, it require more space, and because of this it exerts a pressure, because in this particular area that amount of say combustion product are not going to be place over here. So what happen, it will exert the downward force and it will go into downwards direction, that is called as the exhaust. Okay, so it will go into the, this is also called as working. Okay, so it will go into the downward direction, it will rotate in the backward direction, and then after what happen, whatever that gases is going to be produced over here. So this is a crank and shaft arrangement. If you are going to see, this one is called as crankshaft arrangement, and this is your piston over here and this is the cylinder. इथे जर बघितलं तर हे काय पिस्टन आहे. ओके, हे जे दिसतंय तुम्हाला हे पिस्टन आहे आणि सिलेंडरमध्ये पिस्टन्स मूव्ह केलेलं प्लेस केलेलं असतं. सो वॉट हॅपन, अँड इट इज अटॅच टू दिस वन क्रँक अँड शाफ्ट. सो वेन दिस पिस्टन विल मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल कॉम्प्रेस द गॅसेस as well as air fuel mixture. It's a password. Electrical @1234 E capital. Okay. @123 4. Then second one is the compression stroke. Okay, and in case of your four stroke, this is your four strokes. But in case of two stroke engine, in four stroke engine what happen, these strokes are separate. Okay, in case of four stroke engine all these strokes are separate, but when you are going to discuss about the stroke engine, in that case what happen, these two strokes are combined in one revolution. Four stroke engines require two revolutions. Two complete revolutions are required for completing one cycle. ओके, एक सायकल कंप्लीट होण्याकरता इनटेक, कॉम्प्रेशन, कंबशन अँड एक्झॉस्ट, काही काही याच्यामध्ये कंबशनला वर्किंग स्ट्रोक पण कन्सिडर केलेला आहे त्याच्यामध्ये. ओके, सो इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजिन वी रिक्वायर टू सायकल्स फॉर कम्प्लीट टू रिव्होल्युशन्स फॉर वन सायकल. अँड इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजिन्स याच्यामध्ये काय, इनटेक आणि कॉम्प्रेशन एक स्ट्रोक आहे, सो इट इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. आणि तुमचा कंबशन आणि एक्झॉस्ट एक स्ट्रोक आहे, त्याला म्हणतात पॉवर स्ट्रोक. ओके, सो टू स्ट्रोक इंजिनमध्ये तुम्हाला दोन स्ट्रोक्स असतात, त्याच्यामध्ये काय इनलेट आणि कॉम्प्रेशन एका रिव्होल्युशनमध्ये म्हणजे हाफ रिव्होल्युशनमध्ये कंप्लीट होतं, आणि दुसऱ्या हाफ रिव्होल्युशनमध्ये काय होतं तुमचं कंबशन आणि एक्झॉस्ट. सो इट इज कॉल्ड ॲज द टू स्ट्रोक इंजिन. सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन युअर टू स्ट्रोक इंजिन अँड फोर स्ट्रोक इंजिन. Basically the all working strokes are like that: inlet, compression, combustion and exhaust. In four stroke engine these are separate, but in case of two stroke engine these two combine. Okay, these two are going to be combined over here. And in case of four stroke engine, half stroke is required for intake, half stroke is required for compression, half stroke is required for combustion, and half stroke is required for exhaust. So it required two revolutions. And in case of your two stroke engine, half stroke is required for compression and half stroke is required for power. So it requires only one revolution.
Okay, so this is the basic difference between your 4-stroke engine and 2-stroke engine. This is going to be clear when you are going to discuss other things also. A 2-stroke engine is an engine that complete a power cycle with 2 strokes of piston during only one crankshaft revolution. ओके, एकाच रिव्होल्युशनमध्ये 2 स्ट्रोक्स होतात त्यामध्ये. सो 2-stroke engine is an engine that completes a power cycle, that complete one cycle with 2 strokes. Okay, complete power cycle is going to be happen in 2 strokes. Okay, and during only one crankshaft revolution and single crankshaft revolution that is going to be takes place. That's why it is called a 2-stroke engine. But when you are going to say a 4-stroke engine, in case of 4-stroke engine, what is going to be happen? A 4-stroke engine is an internal combustion engine. Internal combustion engine means what? The combustion is going to be takes place inside the engine only, in which the piston complete 4 separate stroke while turning the crankshaft. आणि 4-stroke मध्ये काय होतं की 4 सेपरेट स्ट्रोक्स असतात. इनटेक, कॉम्प्रेशन, कंबशन अँड एक्झॉस्ट. दीज आर सेपरेट स्ट्रोक्स विच आर गोइंग टू बी टेक्स प्लेस. काय झालं? यस, हिंदी में सब बोले ना. हिंदी में बोलूँ. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट से इन इंग्लिश एंड देन वी आर गोइंग टू से. सो इन 2-stroke इंजन में क्या होता है, ये जो 2-stroke का इंजन रहता है उसमें एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपके दोनों स्ट्रोक होते हैं. एक स्ट्रोक पे क्या करता है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेता है. ओके, जैसे डीजल होगा या पेट्रोल होगा, उसके साथ में एयर होगा. क्योंकि कंबशन के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, एयर में मिलता है. तो ये जो 2-stroke इंजन होता है वहाँ पे जो एक रिवोल्यूशन होता है, आप अगर आप इस प्रीवियस डायग्राम में देखते हैं तो ये जो 2-stroke इंजन है उसमें कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है. ये जो एक क्रैंकशाफ्ट है इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट. दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड एज क्रैंकशाफ्ट. ओके, CRANK क्रैंक, और इसको बोलते हैं शाफ्ट. सो ये क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन ज्वाइन किया रहता है. सो होता क्या है 2-stroke इंजन में कि जो 2 स्ट्रोक है यानी एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेना और उसको कॉम्प्रेस करना, ये दोनों ऑपरेशन आधे रिवोल्यूशन में ही कंप्लीट होते हैं. यानी वो 180 डिग्री, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री. सो इट इज़ 0, 0 to 180 and 180 to 360. So you know that this is 270. Okay, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 0 means it is 360 degree. So one complete revolution means we are going to go start from one point and again comes to that point is called as the one revolution. Okay, so in case of 2-stroke engine what happen, इन 2-stroke इंजन हाफ स्ट्रोक जो रहता है आधे रिवोल्यूशन में क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है. यानी वो एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेता है और उसको जलाता है. ओके, कॉम्प्रेस करता है. और दूसरा आधा जो रिवोल्यूशन रहता है उसमें क्या करता है, उसको जलाता है वो, और उसके बाद में उसको बाहर भी निकाल देता है. जो कंबशन के गैसेस रहते हैं, जैसे आपकी बाइक चलती है तो बाइक में अगर जब आपका पेट्रोल या डीजल 2-व्हीलर या 4-व्हीलर होगी तो उसमें जब वो पेट्रोल और डीजल जल जाता है तो आपके जो साइलेंसर रहता है एग्जॉस्ट सिस्टम, वो साइलेंसर में से धुआं बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट. वैसे एग्जॉस्ट और वर्किंग जो रहता है उसका जलना और बाहर धुआं का बाहर निकलना वो दूसरे हाफ रिवोल्यूशन में होता है, दूसरे आधे रिवोल्यूशन में होता है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 2-stroke. यानी एक ही रिवोल्यूशन में आपके पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है 2-stroke इंजन में. जबकि देखा जाए तो 4-stroke इंजन में आपको साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो रिवोल्यूशन लगते हैं. यानी 2 बार घूमना गिरता है. ये एक बार जब घूमता है तो वो अंदर हवा और जो फ्यूल रहता है उसको अंदर लेता है. दूसरी बार वो उसको कॉम्प्रेस करता है. तीसरी बार जब आधा घूमता है तो उसको वो जलाता है, कंबश करता है, और चौथी बार उसको बाहर निकाल देता है. ऐसे 2 रिवोल्यूशंस लगते हैं उसमें. इसके लिए उसको बोलते हैं 4-stroke इंजन. यानी 4 सेपरेट स्ट्रोक रहते हैं वहाँ पे. सो हमने वही देखा अभी कि 2-stroke इंजन में होता क्या है कि एक कंप्लीट पावर साइकिल, यानी आपको कंप्लीट पावर साइकिल यानी रोटेशन करने के लिए आपको उसको एक बार पूरी क्रैंकशाफ्ट को घूमना है. ओके, और 4-stroke इंजन में अलग अलग ऑपरेशन रहते हैं सेपरेट. इनलेट का अलग है, ओके, कंबशन का अलग है, कॉम्प्रेशन का अलग है, और उसके बाद में एग्जॉस्ट अलग है. तो वो होता कैसे. अब यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सी द एनिमेशन? यू कैन सी ओवर हियर. ओके, यहाँ पे एक जो रिवोल्यूशन रहता है तो एक रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, ये गैसेस एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है. ओके, वो अंदर आने के बाद में क्या हो रहा है कि ऊपर उसको प्रेस कर रहा है, उसको कॉम्प्रेस भी हो रहा है. यानी ये हो गया आधे रिवोल्यूशन में. ओके, ये जब आधा
आधा घूमता है 50% घूमता है तब अंदर भी आता है और ऊपर भी जाता है, और दूसरे आधे में क्या होता है कि यहाँ पे उसको जल भी जाता है और गैसेस बाहर भी निकलती है। ये क्या हो गया आपका 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, और 4 स्ट्रोक में क्या होता है देखिए, गैसेस आपके यहाँ से अंदर आ रहे, ओके, आधे रिवोल्यूशन में अंदर आ रहे, आधे रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहे, उसके बाद में एक आधा रिवोल्यूशन जो रहता है उसमें वो जलते हैं, और चौथा जो आधा रिवोल्यूशन रहता है उसमें से वो निकलते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसको 2 बार पूरा घूमना गिरता है, इट नीड टू रोटेट 2 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे उसको एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने के लिए एक ही बार पूरा घूमना गिरता है, यहाँ पे 2 बार घूमना गिरता है। ओके, सो इन 2 स्ट्रोक इंजन what is going to be happen, in one crankshaft revolution the complete power stroke takes place or power cycle takes place. In case of 4 stroke engine, the complete power strokes required to separate say movement of the crankshaft over here. So is it clear? Is it clear? अब समझ में आया? ओके, तो अभी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बेसिक डिफरेंस क्या रहते हैं। सो 2 स्ट्रोक में इट हैज़ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग 1 पावर, इसमें सिर्फ एक ही रिवोल्यूशन रहता है और एक पावर साइकिल के लिए, जबकि 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशंस होते हैं, वो 2 बार घूमता है 1 पावर साइकिल के लिए, 1 पावर स्ट्रोक के लिए। सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। सो स्पीड किसका ज़्यादा रहेगा, 2 स्ट्रोक का या 4 स्ट्रोक का? 2 स्ट्रोक का सर। ओके, 2 स्ट्रोक का स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसको एक पावर स्ट्रोक में सिर्फ एक बार ही घूमना गिरता है, जबकि 4 स्ट्रोक में क्या करता है, उसको 2 बार घूमना गिरता है, उसके लिए उसका स्पीड थोड़ा कम रहेगा। इट जनरेट हाई टॉर्क। 2 स्ट्रोक इंजन क्या करता है, हाई टॉर्क जनरेट करता है, यानी इसका पावर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा, टॉर्क जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसका टॉर्क थोड़ा बहुत कम रहता है। इट यूजेस पोर्ट फॉर फ्यूल आउटलेट एंड इनलेट। ओके, एंड इट यूजेस वॉल्स। यहाँ पे क्या है, पोर्ट है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्स है। अब पिछले स्लाइड में देखते हैं अभी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग है, इसको बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, इसको बोलते हैं पोर्ट्स। ओके, सो इट यूजेस पोर्ट्स फॉर से वर्किंग पर्पस एंड इट रिक्वायर्ड वॉल्स। अगर आप ये देखते हैं तो इसमें क्या है, वॉल्स है। ओके, ये इनलेट का वॉल है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप ठीक से, ओके, तो ये एक वॉल है और ये दूसरा वॉल है। ओके, सो ये वॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग देख सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्स रहते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल नहीं रहते, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके, यहाँ पे वॉल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग है। 2 स्ट्रोक इंजन में डायरेक्ट ओपनिंग रहता है और 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्स रहते हैं। अब आप धीरे से देखेंगे या फिर केयरफुली देखेंगे तो इसका मूवमेंट भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये कैसे मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट कैसे होता है। ये अभी खुल गया, इसमें से बाहर निकल रहे, अब ये खुल गया, इसमें से हवा अंदर जा रही, तो ये वॉल है। वॉल जब ओपन क्लोज होता है तो उसमें से हवा अंदर आती है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। जब वो एग्जॉस्ट वाला वॉल खुलता है तो वहाँ से वो बाहर निकलती है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल वगैरह कुछ भी नहीं रहता, 2 डायरेक्ट ओपनिंग रहती है, वो सिलेंडर से क्लोज और ओपन होते रहती है। जब सिलेंडर नीचे आता है एट दैट टाइम एयर अंदर आती है और सिलेंडर ऊपर जाता है तो एयर और एग्जॉस्ट दोनों बंद हो जाते हैं। ओके, देन द इंजन रिजल्ट्स इन लेसर थर्मल इफिशियंसी। 2 स्ट्रोक की इफिशियंसी कम रहती है। ओके, इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, जबकि इसकी थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा है। 4 स्ट्रोक की थर्मल इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा है। इट हैज़ लार्जर रेशियो ऑफ इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन में, तो मुझे अगर 100 यूनिट पावर जनरेट करनी है तो इसके लिए सपोज इसका वेट है 100 kg। ओके, वी आर टेकिंग ओनली रैंडम वैल्यू। वहीं पे अगर मैं इसको 100 यूनिट पावर जनरेट करता हूँ इसमें, ओके, तो उसका वेट लगभग 80 kg या उससे भी कम होगा। तो पावर टू वेट रेशियो जो रहता है ना उसका कम रहता है, यानी इसमें 4 स्ट्रोक इंजन का वेट जो रहता है कम रहता है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन ऑफ सेम पावर कैपेसिटी। 4 स्ट्रोक इंजन क्या रहते हैं, थोड़े लाइट वेट रहते हैं एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन ऑफ सेम कैपेसिटी। इट जनरेट मोर स्मोक। ओके, सो यहाँ पे स्मोक यानी धुआं ज़्यादा निकलता है, यहाँ पे कम स्मोक निकलता है। एंश्योर मोर इफिशियंसी। ओके, रिक्वायर मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल एज सम ऑयल बर्न्स विद द फ्यूल।
यहाँ पे क्या रहता है, उसको लुब्रिकेशन के लिए ऑयल ज़्यादा लगता है, क्योंकि कुछ ऑयल है ना जल जाता है फ्यूल के साथ में, और यहाँ पे क्या रहता है कि कम ऑयल लगता है, क्योंकि ऑयल जलता नहीं है फ्यूल के साथ में, क्योंकि अंदर जाता ही नहीं है वो। ड्यू टू पुअर लुब्रिकेशन, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल लगता है, ऑयल बर्न होता है, तो डेफिनेटली लुब्रिकेशन क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। जब लुब्रिकेशन कम होता है तो क्या होगा, उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा और वो इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसको मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है 2 स्ट्रोक इंजन को। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में ऑयल अच्छा रहता है, उसकी लुब्रिकेटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, विस्कोसिटी शुड बी मेंटेन ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन। सो उसकी वजह से क्या हो गया कि वेयर एंड टीयर उसका कम होता है। ओके, इंजिन्स आर चीपर, ये इंजन सस्ते होते हैं, एंड सिंपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये सस्ते भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं बनाने के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन दीज आर एक्सपेंसिव, वो थोड़े महंगे रहते हैं ड्यू टू लुब्रिकेशन एंड वॉल्स, क्योंकि इसमें वॉल्स है, वॉल्स का एडिशनल खर्चा बढ़ जाता है इसमें, एंड दे आर टफ टू मैन्युफैक्चर, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन समवॉट डिफ़िकल्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये दोनों का कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा बहुत डिफरेंस दिखेगा। ये जो इंजन है 4 स्ट्रोक का वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, यहाँ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में यहाँ से सेपरेट ओपनिंग है, यहाँ पे वॉल्स है, वॉल के लिए अलग से है। ओके, वॉल के लिए अलग से उन्होंने जगह दी है। ये वॉल्स कैसे मूव होते हैं, तो यहाँ पे अगेन अरेंजमेंट है, ये मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से वॉल प्रेस होता है, वो प्रेस होने के बाद में ओपन होता है, क्लोज होता है। ये सब जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा महंगा रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पार्क प्लग, दोनों इंजन में यहाँ पे स्पार्क लगाए बताए। सो दीज आर स्पार्क इग्निशन सिस्टम। ओके, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आपको स्पार्क इग्निशन में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है। जो स्पार्क प्लग की वजह से क्या होता है कि हर कुछ सेकंड बाद हर कुछ इसमें क्या करता है, वो स्पार्क जनरेट करता है, और स्पार्क जनरेट होने की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो जल जाता है। ओके, सो दीज आर simple for manufacturing 2 stroke and these are difficult for manufacturing 4 stroke. Then engines are basically lighter and noisy. ये जो 2 स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसका आवाज़ बहुत आता है। ओके, और जो 4 स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसका नॉर्मली आवाज़ थोड़ा कम रहता है और इसका वेट भी कम रहता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन जो रहते हैं ये थोड़े से हेवी दिखते हैं, लेकिन कैसे रहता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू कंसिडर विद द पावर टू वेट रेशियो, उसका पावर टू वेट रेशियो कम रहेगा। ओके, बट इसमें जो है बिकॉज इट्स फ्लाईव्हील इज़ हेवी एंड आर लेस नॉइसी, इसमें जो फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं उसका वेट बढ़ जाता है, उसकी वेट की वजह से इसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है ओवरऑल। व्हेन यू आर गोइंग टू कंसिडर द ओवरऑल सिस्टम, फ्लाईव्हील की वजह से उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। ओके, एंड आर लेस नॉइसी, लेकिन ये नॉइस कम प्रोड्यूस करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। सो दीज आर द कॉमनली आस्क्ड डिफरेंसेस एंड दीज डिफरेंसेस आर आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन? एंड सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड, एंड सेम क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, नाउ सो ये हो गया। अब ये गैस डीजल बेस्ड कंबशन इंजन जो रहते हैं तो इसमें होता कैसा है, ये अलग अलग एनिमेशंस बताया आपको इसमें। जैसे अभी 2 स्ट्रोक का देखा हमने, ये 2 स्ट्रोक का ही है, जहाँ पे होता क्या है, एक साइड से आपका हवा अंदर आती है, जो ऊपर जाती है एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ पे जल जाती है और जलने के बाद में यहाँ से बाहर निकलती है। सो ये इनलेट है या आउटलेट है? ओके, ये इनलेट है आपका, ये आउटलेट है। ये है 2 स्ट्रोक इंजन और ये है 4 स्ट्रोक इंजन। कैसे आप कैसे पहचानते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन कौन सा है, 4 स्ट्रोक इंजन कौन सा है? 2 स्ट्रोक इंजन में ये सिस्टम नहीं रहती, वॉल्स नहीं। 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्टली ओपनिंग रहता है। ओके, और 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्स रहते हैं, तो इसकी वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा 2 स्ट्रोक इंजन है और कौन सा 4 स्ट्रोक इंजन है। ओके, अगेन से दिस इज सम इंजन अलॉन्ग विद द एनिमेशन, कौन कौन से स्ट्रोक रहते हैं। सो पहला स्ट्रोक क्या रहता है, इनटेक, जिसमें हम हवा और जो अपना फ्यूल है, एयर पेट्रोल होगा या डीजल होगा, उसको अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनटेक। दूसरा जो रहता है, जो हमने हवा और पेट्रोल डीजल जो कुछ अंदर लिया है उसको हम दबाते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तीसरा जो रहता है उसमें क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है। ये स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है। या फिर जो अगर CI इंजन होगा आपका कॉम्प्रेशन इग्निशन सिस्टम, सो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस होने की वजह से उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो खुद ब खुद जलने लगता है, तो वो रहता है आपका पावर स्ट्रोक। और वो जलने के बाद में क्या होता है, एक्सपांड होता है, वो एक्सपांड जैसे ही होता है उसको नीचे ढकेल देता है। सो ये नीचे हो गया, तो गैसेस एक्सपांड होते हैं, और उसके बाद में नीचे आ गया तो एक क्रैंक सिस्टम है। सो ये फिर से उसको क्या करता है, ऊपर भेजता है, तो ये जलने के बाद में उसको क्या कर देता है,
Okay, so again it will release the exhaust gases through this one. So it is the 4-stroke engine. Okay, or is it a 2-stroke engine or 4-stroke engine? ये जो दिख रहा है ये 2 स्ट्रोक वाला है कि 4 स्ट्रोक वाला है? 4 stroke 4 engine. stroke engine. हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ 4-स्ट्रोक इंजन? कैसे बोल सकते हैं आप कि ये 4 स्ट्रोक वाला इंजन है? 2 Sir, walls. volume. यस, इसमें वॉल्स दिख रहा है आपको, अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, Walls वॉल्स है, है. sir. ओके, सो ये वॉल की वजह से हम इजीली बता सकते हैं कि ये 4-स्ट्रोक इंजन है. एक यहाँ पे वॉल दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का वॉल है और एक रेड कलर का वॉल है. ओके, ये इनलेट के लिए वॉल है और ये एग्जॉस्ट के लिए वॉल है. इसमें से जो कंबशन गैसेस निकलते हैं वो बाहर जाएंगे. क्यों हमें बाहर भेजने हैं? अगर मैं गैसेस बाहर नहीं भेजता हूँ तो इंजन के अंदर रहेंगे और वो इंजन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उसके अंदर जगह नहीं रहेगी, मैं जब गैसेस बाहर भेजूंगा उसी टाइम उसके अंदर जगह होगी. तो इसके लिए मुझे एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जैसे आप लोग बोलते हैं कि अगर आपने साइलेंसर बंद कर दिया तो आपका ये बंद हो जाता है, या फिर एयर फिल्टर रहता है आपकी बाइक में. एयर फिल्टर को है ना, कभी एक काम करके देखना, आप जब बाइक यूज़ करते हैं तो एयर फिल्टर के पूरा पैक कर देना, वहाँ पे एक कपड़ा वगैरह कुछ डाल के या पॉलीथीन से पूरा पैक करना और गाड़ी चालू करना. तो हार्डली 3-4 मिनट में आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी. आपके गाड़ी में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, फिर भी वो बंद हो जाती है. क्यों बंद होती है? क्योंकि अंदर हवा आने के लिए जगह ही नहीं है. ओके, वैसे ही अगर आप कंप्रेसर को पूरा पैक कर देते, सॉरी एग्जॉस्ट को, साइलेंसर को जो रहता है जहाँ से धुआं निकलता है उसको पूरा पैक कर देंगे तो क्या होगा वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे. ओके, और ये हो गया आपका 2-स्ट्रोक इंजन, सॉरी ये भी 4-स्ट्रोक इंजन ही है. कॉम्प्रेशन स्ट्रोक्स है, उसमें पावर स्ट्रोक है. यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रोक रहते हैं. एग्जॉस्ट है, ओके, और इनटेक है. सो इसमें आप ठीक से देख सकते हैं कि इनटेक में क्या होता है. इनटेक में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी इनटेक में क्या होता है. एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया. अब कॉम्प्रेशन में क्या कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं. उसमें पावर में क्या होता है, यहाँ पे वो जल जाता है. और एग्जॉस्ट में क्या होता है, वो बाहर धुआं निकल जाता है. ये साइलेंसर से, ये आपका साइलेंसर है. ओके, सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ एग्जैक्टली द 4-स्ट्रोक इंजन और 2-स्ट्रोक इंजन विल वर्क? एंड आप यहाँ पे देखते हैं तो ये मैकेनिकल मूवमेंट्स है, इसकी वजह से वॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली क्लोज होता है. ये क्रैंक एंड शाफ्ट अरेंजमेंट. सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट इज़ गोइंग टू बी प्रेस. ओके, जैसे आपका स्पीड बढ़ता है तो इसका रोटेशन भी बढ़ जाता है. जब आप एक्सीलेटर जब घुमाते हैं ना गाड़ी का, तो एक्सीलेटर घुमाते हैं तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए. तो ज़्यादा पावर चाहिए तो ये भी ज़्यादा स्पीड से घूमता है. ये जितने ज़्यादा स्पीड से घूमेगा उतने ज़्यादा स्पीड से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, उतने ज़्यादा स्पीड में होगा और यह स्पीड बढ़ेगा. सो इट विल कम control that. Again, when you are going to increase the accelerator, what is going to be happen, the amount of fuel that is going to be put inside the engine, that is going to be increases, because आपका जो पावर है वो सब किस पे डिपेंड करता है. आपका पावर डिपेंड करता है आपके से फ्यूल कितनी चल रही है. और दूसरा है स्पीड. सो स्पीड को चेंज करने के लिए हम गियर भी यूज़ करते हैं. सो गियर क्या करता है, गियर पावर को कांस्टेंट रखता है. मैं पावर इज़ नियरली कांस्टेंट. ओके, क्योंकि ये इंजन जो है वो एक ही स्पीड से रन होता है नॉर्मली. ओके, सो गियर अरेंजमेंट रहती है उसमें. सो गियर क्या करता है, आपका टॉर्क कम ज़्यादा करता है. जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से वो क्या करता है, टॉर्क. जैसे फर्स्ट गियर पे हम गाड़ी चलाते हो तो उसमें पावर ज़्यादा रहती है लेकिन स्पीड कम रहता है. ओके, पावर इज़ मोर एंड स्पीड इज़ लेस. बट वही अब चौथे गियर में गाड़ी चला रहे तो वहाँ पे पावर कम हो जाती है और स्पीड बढ़ जाता है. Okay, and nearly power is going to be decreases over, and actually what we are going to do, we are going to gear for this purpose, and that's why we are always using which gear. If you are going to just move upside, अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, ढलान पे, सॉरी ऊंचाई पे अगर जाना है तो आप कौन से गियर में गाड़ी चलाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? 1 gear. फर्स्ट गियर में. आप हमेशा पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं क्योंकि पहले गियर में क्या रहता है, पावर ज़्यादा रहता है, टॉर्क ज़्यादा रहता है उसकी, और स्पीड कम रहता है. मुझे स्पीड की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे ऊपर गाड़ी चढ़नी चाहिए. अगर वही आप है ना चौथे गियर में डाल के गाड़ी ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा मिलता है लेकिन पावर कम हो जाती है. ओके, सो दिस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ओवर देयर. नाउ हम लोग अभी देखते हैं कि अलग अलग पावर स्टेशन जो रहते हैं उसमें लिए कौन कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं और उस फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं. ओके,
सो डीजल फ्यूल जो रहती है वो बेसिकली लिक्विड फ्यूल्स रहती है। लिक्विड फ्यूल यानी क्या होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 टाइप्स की फ्यूल रहती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, सो सॉलिड लिक्विड यानी कोयला है, लकड़ी है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में क्या रहता है आपका, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो है वो है लिक्विड फ्यूल्स। ओके, अपना एलपीजी गैस है, दैट इज ऑल्सो लिक्विड फ्यूल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी यानी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सो ये जो फ्यूल है उसको बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। सो बेसिकली हम जो इंजन के लिए जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मली क्या रहता है, दैट मे बी डीजल और पेट्रोल। ओके, आप जो बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, या ट्रक्स वगैरह यूज़ होती है, उसमें पेट्रोल या डीजल यूज़ किया जाता है, या एयरप्लेन जो रहते हैं उसमें भी वही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो दैट इज़ हाई ग्रेड। सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। और ये लिक्विड फ्यूल मिलती कैसे है, तो ये क्रूड ऑयल जो रहता है ना ज़मीन के अंदर, उसको रिफाइन करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उसके अंदर से फिर वो अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, विच कंटेंट 84 to 87% कार्बन। उसके अंदर क्या रहता है कि नियरली 84 से 87% तक उसमें कार्बन रहता है, और 11 से 16% तक उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर रहता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, तो पहले हम सिक्वेंसली देखते हैं। सो द लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल विच कंटेन 84 to 87% ऑफ कार्बन एंड 10 to 16% ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। ओके, सो उसमें अभी होता कैसे, लिक्विड फ्यूल्स हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर कोल। जब हम उसको है ना सॉलिड फ्यूल से कंपेयर करते हैं, अब सॉलिड फ्यूल कौन सी है, मेरी कोयला। ओके, और क्या रहता है, ऊड रहता है, लकड़ी और कोयला से बेहतर है कि नहीं है। लिक्विड फ्यूल जो आप यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, ये बेसिकली है ना इससे अच्छी है। इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द solid fuel, these are quite better than your solid fuel, liquid fuels. दे आर ईजी टू हैंडल। क्यों अच्छी है, क्योंकि ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बर्न कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल जितना कोयला जलाने के बाद में मुझे पावर मिलती है, उससे लगभग आधे से कम मैं पेट्रोल डीजल पे जलाता हूँ, तब मुझे अच्छी पावर मिल जाती है। इसलिए उसका रहता है, क्या रहता है कि इसकी कम क्वांटिटी में हम ज़्यादा पावर यूज़ कर सकते हैं। इससे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ऐश डिस्पोजल। अगर ये जलाने के बाद में है ना मुझे ऐश वगैरह भी नहीं मिलता, ऐश वगैरह नहीं प्रोड्यूस होती है। ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जब मैं कोयला जलाता हूँ या से मैं लकड़ी जलाता हूँ, उसके बाद में क्या होता है, उसके राख प्रोड्यूस होती है, ऐश प्रोड्यूस होती है। सो ऐश डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसे 10 kg कोयला जलाने के बाद में लगभग 1 kg तक या 2 kg तक ऐश जनरेट हो जाती है, 1 kg तक ऐश जनरेट होती है। तो वैसे लिक्विड फ्यूल को जलाने के बाद में किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता है, ऐश जनरेट नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ गैसेस ही जनरेट होते हैं, जो इसको जलाने के बाद में ही होते हैं, बट इसमें जो थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ओके, लिक्विड फ्यूल्स कैन मीट द लोड चेंजेस वेरी क्विकली। अगर मुझे लोड चेंज भी करना है तो क्विकली, जैसे आप देखते हैं, अगर आप अपने पुराने टाइम की ट्रेन्स देखे होंगे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द शोले मूवी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द शोले मूवी? शोले पिक्चर देखी है आपने? शोले पिक्चर में है ना मूवी में, यस सर। कौन सा इंजन, एक रेलवे बताइए, उस रेलवे का इंजन कौन सा रहता है? कोयला कोयला डाल कोयला के चलता है। ओके, सो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना गिरता है आपको, बहुत ज़्यादा कोयला बहुत स्पीड से डालना गिरता है। ओके, सो वो जब जलेगा, जितने स्पीड से जलेगा उसको टाइम लगता है उसमें। अगर आप सोचिए, आप बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक कोयले पे चल रही है, आपको कोयला भी कैरी करना है, उसके साथ में पानी भी कैरी करना है, और सब उसका वेट कितना बढ़ जाएगा। ओके, और आपको अगर एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाना है, आपके पीछे कुत्ता लगा है और आपको स्पीड बढ़ाना है गाड़ी का, या फिर आपको रेस लगानी है कहीं पे, सो आप कैसे करेंगे? सो इसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मुझे लोड वेरिएशन में। यानी अगर मुझे स्पीड बढ़ाना हो उस केस में, जैसे मैं सॉलिड फ्यूल्स लेता हूँ, अगर वहाँ पे मुझे है ना लोड चेंज हो जाता है मेरा, तो उस प्रोपोर्शन में मुझे लोड को, बढ़े हुए लोड को या कम हुए किए हुए लोड को मेंटेन करने के लिए है ना मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी गिरती है इस केस में। लेकिन पेट्रोल में और डीजल में क्या जाता है, लिक्विड फ्यूल में, ओके, आप घर का गैस देखिए,
अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ घर के गैस को एक नॉब रहता है, नॉब को इस साइड में घुमाते हैं या इस साइड में घुमाते हैं, सो ये आपका नॉब है। ओके, सो एक तरफ घुमाते हैं तो आपकी फ्लेम जो रहती है वो कम हो जाती है, और दूसरी तरफ घुमाते हैं तो फ्लेम बढ़ जाती है। ओके, सो आप कितने ईजीली, कितने सरलता से उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लेम को। ये जो गैस की फ्लेम है ना, आप हर किसी के घर में गैस है। ओके, अगर आपने कभी गैस नहीं यूज़ किया तो अभी जाके देखिए थोड़ी देर बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद में, और उसको कंट्रोल करके देखिए कि गैस की फ्लेम को आप कितनी सरलता से, कितनी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर आप चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में जो लकड़ी या कोयला जलाते होंगे उसके लिए उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, उसको टाइम लगता है। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम फिर से आपको फेस करना पड़ता है जब आप सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। लिक्विड फ्यूल में आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द चेंजेस इन द लोड। They are costly, definitely. If you are going to compare the cost of this coal is comparatively very less as compared to the cost of your diesel. So मुझे अगर 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल परचेस करना है तो लगभग आज 110 रुपीज़ पर लीटर है। वही 1 kg मुझे कोल परचेस करना है तो मुझे 15 से 20 रुपये में मिल जाता है अच्छे ग्रेड का। ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर द कॉस्ट, इट इज़ मोर कॉस्टली. Liquid fuels are more costly as compared to the solid fuels. Okay, but at the same time they have the good calorific value, they will give more output. The crude oil products can be either distilled or residual oil or mixture of two. They can be classified as light, medium and heavy. Heavy residual oils have high density and viscosity and sometimes made lighter by bending with distillate oil. ओके, सो ये उसका थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज़ है दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टेक्निकलिटीज़. वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ liquid fuels. The first one is called as the naphtha. Okay, so naphtha is a higher end petroleum product and it's very commonly used in the petrochemical industry. So ये सबसे प्योर फॉर्म में रहता है. नेप्था इज़ अ हाइयर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोल से भी प्योर रहता है ये, और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज़ होता है. इट इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल एंड इज़ कॉमन लिक्विड फ्यूल इन यूरोप. ओके, ये सबसे क्लीन रहता है, जितने पेट्रोल डीजल वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, सबसे क्लीन जो रहता है वो नेफ्था रहता है, और ये नॉर्मली यूज़ करते हैं यूरोप वगैरह साइड में यूज़ करते हैं. इट्स एडवांटेज इंक्लूड लो कॉस्ट, लो इमिशन, गुड अवेलेबिलिटी एंड गुड टर्बाइन इफिशियंसी. इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है, इसकी इमिशन भी कम रहता है, जैसे जो गैसेस रहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, SOx एंड NOx प्रोडक्ट्स आर कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. और ये यूरोप में अच्छी तरह से मिल जाता है और इसकी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी रहती है. सो इसकी डेंसिटी, इसके कुछ फीचर्स है. फीचर्स में क्या क्या देखेंगे, इसकी डेंसिटी जो रहती है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 0.66 kg पर मीटर क्यूब. ओके, इसकी डेंसिटी जो रहती है 0.66 kg पर मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फ्यूल में, कैलोरीफिक वैल्यू. सो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 11,200 किलो कैलोरी पर केजी. यानी जब हम लोग 1 kg नेफ्था बर्न करते हैं, 1 kg नेफ्था जलाते हैं, उस टाइम पे हमें लगभग 11,200 किलो कैलोरी हीट जनरेट होती है. ओके, सो इट इज़ द मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट वी विल गेट फ्रॉम इट. देन सल्फर कंटेंट, जो सल्फर इज़ द वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी एग्जॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर. सो इट हैज़ द वेरी लेस सल्फर कंटेंट, ओनली 0.2% ऑफ मास. एंड उसमें लीड भी बहुत कम रहता है. लीड इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस. सो इट हैज़ 1 ppm. ओके, व्हाट इज़ मीन बाय ppm? इज देयर एनीवन हु इज़ गोइंग टू टेल मी व्हाट इज़ मीन बाय ppm? ppm यानी क्या? What is meant by ppm? ppm stand for particle per millennium. ओके, 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स है? ओके, 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं ppm, पार्टिकल पर मिलियन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द ppm. सो नेफ्था हैज वेरी लेस लीड. ओके, so again the second product, naphtha requires careful handling. But what is the important thing? इसको handling बहुत ज़्यादा केयरफुली करना गिरता है. एंड स्टोरेज टू इंश्योर द प्रोडक्ट डज नॉट गेट कॉन्टेमिनेटेड विद अल्कलाई मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. सो इसको जब हम स्टोर करते हैं, इसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको लिए काफ़ी सारी
अपने को केयर ये करने गिरती है. ओके, सो उसको इजीली इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्टेमिनेटेड विद सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, वेडनियम, कैल्शियम विच आर नॉट अदरवाइज प्रेजेंट इन इट. Strictly, guidelines on handling and storage must be added because its flash point is generally below the ambient temperature. इसको है ना ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए भी काफ़ी, क्योंकि ये है ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नीचे ही जल जाता है. एम्बियंट टेम्परेचर रहता है आपका 30 डिग्री या 28 डिग्री, उसके नीचे ये जल जाता है. इसके लिए इसको काफ़ी केयरफुली आपको हैंडल करना गिरता है. ओके, एरोडेरिवेटिव गैस टर्बाइंस जो प्लेन वगैरह में यूज़ होते हैं ना, एरोडेरिवेटिव गैस टर्बाइंस आर बेसिकली यूज फॉर नेप्ता. वी आर गोइंग टू यूज दिस इन एंड इट हैज़ अ साइकिल इफिशिएंसी ऑफ नियरली 41%. इसकी इफिशिएंसी जो रहती है नेप्ता की और लगभग 41% तक रहती है. ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द नेप्ता. नाउ सेकेंड वन इज द हाई स्पीड डीजल. हाई स्पीड डीजल क्या रहता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गैस ऑयल. इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट इट इज़ ऑल्सो पीटी एक्सपेंसिव. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहती है लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है. इट इज़ क्लीनर दैन फ्यूल ऑयल. द गवर्नमेंट डज नॉट इनकरेज द यूज ऑफ HSD फॉर पावर जनरेशन बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर फॉर डीजल पम्प सेट्स एंड ट्रैक्टर एंड इट इज़ प्राइस इज सब्सिडाइज. सो हाई स्पीड डीजल जो रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है. उसकी प्राइस सब्सिडाइज रहती है, इसलिए गवर्नमेंट उसको पावर प्लांट के लिए अलाउ नहीं करता है. आप पावर प्लांट के लिए नहीं यूज़ कर सकते. और इमल्यूशन इज अ फॉसिल फ्यूल एंड इज बेसिकली एन इमल्शन कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल बिटुमिन डिस्पर्ड इन फ्रेश वाटर इन द रेशियो 70-30. सो इसमें क्या रहता है, पानी में बिटुमिन जो रहता है ना उसको पानी में 70-30 के रेशियो में डालते हैं तो आपको लिक्विड फ्यूल मिल जाती है. सो बिटुमिन क्या है? बिटुमिन इज अ टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल. Okay, it can be transported in tankers or pipeline. Its calorific value is nearly 7000 kg. इसकी calorific value जो रहती है वो 7000 किलो कैलोरी पर kg रहती है. And ash content is low. So इसमें ash content भी कम रहता है बहुत. Ash content is only 0.2%. Okay, however sulfur content is rather high. बस इसमें sulfur बहुत ज़्यादा रहता है. If you are going to consider sulfur, सो यहाँ पे सल्फर रहता है लगभग 2.8%. ओके, सो सल्फर कंटेंट इज वेरी हाई. द एग्जिस्टिंग प्लांट यूज फ्यूल ऑयल्स कैन स्विच ओवर टू द ऑलम्यूजन विथ ओनली वन माइनर. जहाँ पे फ्यूल ऑयल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर आपको ऑलम्यूजन करते तो बहुत कम चेंजेस करने गिरते हैं. आप कैन ईजिली कैन द ओवरऑल कंपोजिशन इज, ये बना कैसे रहता है? तो इसमें अगर आप देखते गए तो ऑल्यूजन में क्या है, ओरिमिल्यूजन में क्या है, तो नियरली 20 ऑक्सीजन है. ओके, वो ऑक्सीजन कितना है? 26.4% ऑक्सीजन है यहाँ पर. कार्बन है, सो कार्बन इज 60.1% इज कार्बन. हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन इज नियरली 10.1%. ओके, और सल्फर जो है वो 2.8%. हाउएवर द ओनली सोर्स ऑफ ये, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ वेनेजुएला ही मिलता है. बाकी है ना ग्लोब में कहीं पे अवेलेबल नहीं है. इसके सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस है ये कहाँ पे? वेनेजुएला. ओके, विच इज़ ह्यूज, वहीं पे आपको मिल जाते हैं, बाकी जगह पे नहीं मिलते. गैस टर्बाइन फ्यूल ऑयल. उसके बाद में क्या आता है? सो गैस टर्बाइन फ्यूल ऑयल यूज़ किया जाता है. इट इज़ द लो सल्फर कंटेंट एंड चीपर दैन HSD. However, the gas turbine using this fuel need more frequent maintenance and it is widely used nowadays. सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में या फिर कहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है तो गैस टर्बाइन फ्यूल ऑयल. ओके, ये थोड़ा बहुत HSD से सस्ता होता है बट ये यूज़ करने के बाद में आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस बढ़ जाता है. उसके बाद में कंडेंसेट. सो कंडेंसेट्स आर वेरी लाइट क्रूड ऑयल प्रोडक्ट इन एसोसिएशन विथ आइदर नेचुरल क्रॉस और क्रूड ऑयल. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लीन एंड डर्टी. सो कंडेंसेट 2 टाइप्स के रहते हैं, क्लीन कंडेंसेट रहता है और एक डर्टी रहता है. सो क्लीन कंडेंसेट क्या है? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल लिक्विड गैस लिक्विड. सो कंडेंसेट 2 टाइप के रहते हैं. ओके, सो ये कंडेंसेट के कौन से 2 टाइप हैं? एक है क्लीन और एक है डर्टी. ओके, सो क्लीन में क्या होता है? सो क्लीन कंडेंसेट जो रहते हैं ना उसको जनरली बोलते हैं नेचुरल गैस लिक्विड. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द नेचुरल गैस लिक्विड. इट इज प्रोड्यूस बाय कंडेंसिंग द हायर बॉइलिंग कंपाउंड इन द गैस फील्ड, separating
the steam and handling the product like light refined product. This process ensure good quality product. Okay, so it is natural gas liquid. Okay, और जो डर्टी रहता है ये कहाँ से बनाते हैं? क्रूड ऑयल जो रहता है ना, क्रूड ऑयल फील्ड में से जो क्रूड ऑयल को हम लोग स्प्लिट करते हैं लाइट ऑन मेन क्रूड ऑयल, और वहाँ पे जो मिलता है वो मिल जाता है. सो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रहती है. सो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहती है लगभग 11,000 किलो कैलोरी पर केजी. ओके, एंड सल्फर एंड मेटन कंटेंट भी उसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, कम रहते हैं उसमें. ओके, सो दीज आर समवॉट लिक्विड fuels. So today we are going to stop over here. In tomorrow's session we will discuss about some other things.